Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Minister, Punjab National Bank. So, when many candidates are there in reserve list, and a consistent query is there, sir, what is our chance of being selected? Now, on reserve list, I have made a very comprehensive video, and I am placing the video link in the description box. Watch that video, you will understand how reserve list allocation happens. Now, second important thing is what is your chance and how this will be different this year than preceding years. Now, the first thing is if we look at the response of various candidates, there are good number of candidates. Those are selected for clerk as well as officer, and naturally they will opt for officer cadre. So the candidates, those are in reserve list in clerk, they have higher probability as compared to those are in the reserve list of officer. This is one thing. Secondly, non-joining does not make sure that they will definitely call that much number of candidates under reserve list, because this year's scenario may be very very different than preceding years. We are anticipating that RRB merger may happen by 1st April this year. So if it happens in most of the states, in those states the requirement of staff may undergo a change. So if there are non-joinings in such states, it may not directly result into the demand. So the people, those are in reserve list, they should take this selection under reserve list uh, as a lottery. It may happen, it may not happen. They should continue to put in their efforts for future exams, because reserve list allocation may not be that much this year as it was used to be in preceding years. I am only putting this word of caution because sometimes by collecting the data through RTI, some people become highly optimistic, and by the time last list comes out, they feel sad that their name is not clear. So if you are psychologically prepared well in time, you will be focusing your energies on future exams. A lot of opportunities are already there. SBI Junior Associate application is still open. You can go for that. SBI PO applications are open, and this year all examination will also happen. So reserve list is a very very dicey thing. On one side, you should feel happy that still there is a chance and door is not completely shut. But at the same time, whether this door will open for employment for you is dependent upon so many variables. These variables may work against you, these variables may work in favor of you. So every year I put a note of caution to the reserve list candidates, because you will be forming various groups, you may be forming various platforms where you will be sharing data day and out. But I will definitely give you a sane advice that instead of wasting lot of energies in waiting for your turn, devote your time for future exams and keep this as a lottery ticket, where suddenly you may get a job or suddenly you may feel that this has slipped away. And a person who is psychologically prepared for both will be happy at the end. But having overhype or having over emphasis on reserve list may sometimes damage you. So watch my video that is already there. There are a lot of videos on reserve list. I will also share the playlist link that will give you आइडिया. गॉड ब्लेस यू ऑल. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आप में से काफ़ी लोग रिजर्व लिस्ट के अंदर भी हैं, और उसका निरंतर एक प्रश्न आता है कि सर मेरा क्या चांस है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, मेरा इतना गैप है. इस बारे में मैं आपको कहूँगा कि रिजर्व लिस्ट पे मैंने एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑलरेडी आपको दी है. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. उस वीडियो को ध्यान से देखिए. उससे आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा कि रिजर्व लिस्ट में आने के बाद आपके साथ क्या होने वाला है. अगर हम इस साल के रिजर्व लिस्ट कैंडिडेट्स के बारे में बात करना चाहें, तो जो अभी तक की फीडबैक आई है उसमें ये देखने में आया कि इस साल काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑफिसर और क्लर्क दोनों में सेलेक्ट हो गए.
एंड नेचुरली वो ऑफिसर को लाइक करेंगे। तो उसमें से काफ़ी हो सकता है कि नॉन ज्वाइनिंग क्लरिकल कैडर में रह जाए। तो अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो क्लरिकल लेवल पे जो रिजर्व लिस्ट में है उनकी प्रोबेबिलिटी हायर है देन जो पीओ लेवल के रिजर्व लिस्ट में। बट नॉन ज्वाइनिंग जरूरी नहीं है रिजल्ट करे कि वो फर्दर बैचेस को बुलाएं, क्योंकि इस साल की जो रिजर्व लिस्ट की स्थिति है या इस साल की जो परिस्थितियां हैं वो पिछले सालों से भिन्न है। किस तरीके से भिन्न है? इस साल 1 अप्रैल 2025 को काफी स्टेट ऐसे हैं जहां वन स्टेट वन आरआरबी कंसेप्ट के अंतर्गत मर्जर हो जाएगा, और मर्जर होने के बाद जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट की स्थिति है वो टोटली बदल जाएगी। तो उस स्थिति के अंदर वो बैंक रिजर्व लिस्ट से कैंडिडेट्स लेते हैं नहीं लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है नहीं होती है, ये अभी कल्पना करना असंभव है। इसलिए ये आप मान के चलिए कि जो आप रिजर्व लिस्ट में हैं आपके पास एक लॉटरी की टिकट है जो खुल भी सकती है और नहीं भी खुल सकती है। कई बार क्या होता है कि हम ग्रुप बना लेते हैं, चैनल्स बना लेते हैं, वहाँ आरटीआईज लगाते हैं, नॉन ज्वाइनिंग की प्रतीक्षा करते हैं, उसका डेटा कॉल करते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और लास्ट में पता लगता है सिलेक्शन हो गई या नहीं हुई। दोनों परिस्थितियाँ होती हैं, और जब नहीं होती तो निराशा होती है। कई लोग पूछते हैं कि सर उस बैंक में इतनी वैकेंसी थी नहीं, जो नॉन ज्वाइनिंग भी थी, फिर भी क्यों नहीं दिया। वास्तव में जो रिजर्व लिस्ट होती है ये जरूरी नहीं है कि नॉन ज्वाइनिंग के अगेंस्ट वो आपको ज्वाइन करा ले। ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि उसको रिजर्व लिस्ट से कैंडिडेट लेने हैं या मेन लिस्ट से कैंडिडेट लेने हैं। तो ऐसे भी कई इंस्टेंसेस देखने में है जहां उन्होंने रिक्विजिशन नहीं दी थी वैकेंसीज की, पर अचानक जरूरत पड़ गई रिजर्व लिस्ट से ले लिए, तो ऐसा भी होगा। तो पॉजिटिव साइड पे ये है कि जरूरी नहीं नॉन ज्वाइनिंग की वेट करनी पड़े। किसी बैंक में सडनली एक्सपेंशन में चला गया उसको स्टाफ की जरूरत होगी, वो 1 साल नहीं वेट कर सकता, वो रिजर्व लिस्ट से ले लेते हैं। तो दोनों परिस्थितियां होती हैं, फेवर में भी अगेंस्ट भी। इसमें लक फैक्टर बहुत ज़्यादा प्ले करता है। मगर मेरी एक सलाह है कि जो भी लोग रिजर्व लिस्ट में है वो इसको सिर्फ एक लॉटरी की टिकट की तरह अपनी जेब में रखें, मगर जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं सब में जरूर अप्लाई करें, चाहे वो एसबीआई जूनियर एसोसिएट हो, एसबीआई पीओ या आईबीपीएस के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं या अन्य एग्जाम है, क्योंकि इसके भरोसे नहीं आप बैठ सकते। कई लोग होता है बहुत नजदीक है कट ऑफ से, वो इस आशा में बैठे रहते हैं हमारा हो जाएगा, और आखिर में कई बार निराशा हाथ लगती है। मेरा काम है आपको हर परिस्थिति का सामना करवा देना, चाहे वो बिटर हो चाहे वो सुखद हो, क्योंकि हमेशा जो आदमी वर्ष के लिए तैयार रहता है वो हमेशा कामयाब होता है, क्योंकि फिर हम अपनी प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। अगर हम रोजी पिक्चर लेके चलते हैं कई बार हम पछता जाते हैं। तो इसलिए रिजर्व लिस्ट को आपने एक ये समझिए कि सपना लेके चलना है जो पूरा भी हो सकता है और नहीं हो सकता। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।